ऑलराइट, सो सभी को नवरात्र महा संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राइट, सभी को उत्तरायण की शुभकामनाएं और लोहड़ी की शुभकामनाएं। आज हम लोग 15 दिन हो गए महीना नया साल शुरू होके, और बहुत अच्छे दिन आज हम लोग मिल रहे। आज का दिन जो होता है, आज से सूरज का चढ़ना शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि आप भी नॉलेज के साथ और ज्ञान के साथ हर दिन सूरज की तरह चढ़ना शुरू हो जाओ। राइट, आपकी भी राइज हो नॉलेज के हिसाब से। और ये आज का जो सेशन है, ये हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। राइट, सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लर्निंग। लेट अस स्टार्ट विथ वन वीडियो। ओके, ये वीडियो बहुत ध्यान लगा के सुनिए। आपके पास अगर डायरी पेन अगर है तो छोटे मोटे आप नोट्स भी निकाल सकते हैं। कुछ कुछ चीजों के स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप उसको फिर से लिख सकते हैं। बट आज का सेशन, आज के मकर संक्रांति के दिन आपको मिल रहा है, तो इसका उतना ही जितना फायदा हो उस हिसाब से इस सेशन को अटेंड करिए। ऑलराइट, सो ये वीडियो, लिसन टू दिस वीडियो मन लगा के। ऑलराइट, Hey everyone, you're watching Wisdom Shorts. This is 98-year-old Kartiyayani Amma. She went to a formal school for the first time in her life at the age of 96. She appeared for writing the 4th standard equivalent course under Kerala Literacy Mission and bagged the first rank and scored 98% mark. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുറച്ചിലും തോന്നുന്നില്ല. She recently received the Nari Shakti Puraskar Award, the highest civilian award for a woman in our country. कात्यायनी अम्मा LP केरला, उम्र 98 वर्ष। सीखने की कोई आयु सीमा नहीं होती। आपने क्लास 4 के बराबर की साक्षरता प्राप्त की। आप कॉमनवेल्थ की लर्निंग गुडविल एम्बेसडर हैं। They say you are never too old to learn. Kartiyayani Amma is a living proof of that statement. In fact, she's not planning to stop. She aims at completing her class 10 equivalent when she turns 100. She's also learning computers now. Kartiyayani Amma is unstoppable and true inspiration for all of us to start anything new at any age. It's never too late to work towards your dreams. And it's not just learning, it's not too late to start anything new. Let me share with you one more inspiring story. So this old man, 65 years old and broke, got his first social security check at 65, $105. He looked at it and said, I don't want to live my life like this. I want to do my own business. And he didn't have any capital or any resources. The only thing he was good at was making chicken, making fried chickens. A lot of people liked his fried chicken. So he decided to make a business out of it. So he started visiting all these places, met the owners of restaurants, and this was a sales pitch. Hi, my name is this. I have the best chicken recipe in the whole world. My chicken recipe is better than anything you have ever tasted in your whole life. And I don't want any money from you. It's a secret recipe. You can take it for free. Pay me only the percentage of profit you make out of selling it. And guess what? Everyone rejected his idea. People are like, are you crazy? What do you think? We got our own recipe. We don't want to share our profit. And his recipe was rejected 1,009 times before someone accepted it. He traveled all around the US, sleeping in his car, and sold his recipe to people. His name is Colonel Sanders, the founder of KFC chain. Colonel Sanders is the integral part of KFC's branding, right? And his face is there on their logo. Today, KFC is world's second largest fast food chain, 22,000 plus locations, 150 countries. He lived till the age of 90 to see the massive success he created. A lot of stories like this. The creator of Starbucks, Gordon Boker, he was 51 when he started the company. IBM was founded by Charles Flynn when he was 61. Walt Disney was 53 years old when he came up with this idea of Disneyland. These are examples of how you are never too late to take on the challenge of starting something new.
We tell ourselves that we are too old or sometimes too young to try something new. Age should not limit us. See, at the age of 42, Rishi Sunak became the Prime Minister of UK. Imagine if he told himself, like, I'm too young to become a Prime Minister. Mark Zuckerberg, he started Facebook when he was 19. The truth is, we are not too late or too early for anything, right? We all are on a different journey, different path, different journeys, right? At any point, we can divert and take the road less traveled. It's entirely up to you to decide when you're ready. And we all need our own time to travel our own distance. And every step is necessary in that journey. So don't compare your journey with someone else's journey and get disappointed. And don't let your age stop you from achieving your goals. And we say a lot of stories to ourselves, like by comparing us with others. It's too late to get married. It's too late to learn something new. It's too late to start a business. It's too late to get into shape. It's too late to learn a new language. It's too late to pursue my passion. It's too late for blah, blah, blah. You look around and you will see people who made things happen at different ages. And a lot of cases, when you come in with the belief that it's either too late or too early, you're more limited by your own perspective and pre-existing notions. Forget about your age. It rarely matters as much as you think it will. It's never too late to start something new. One more thing. Do you know what's the number one secret to longevity as per research? It's this. Have something to look forward in life. In life, you're either growing or dying. If you're not learning, if you're not challenging yourself, you're not growing. And if you're not growing, you're dying. We need something to look forward to. Look forward in life every day morning. So please don't retire, ever. Please don't retire from life. Keep learning, keep trying something new. And make the rest of your life the best of your life. It's never too late to change your life. It's never too late to start over. It's never too late for a new beginning. It's never too late to be great. Thank you so much for watching. I am Srijit Krishnan. Stay happy. All right. It is never too late to start anything new. Right? So that means मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ, जितना भी लाइफ अपने पास बचा हुआ है, उस लाइफ को अगर बेस्ट ऑफ द लाइफ अगर बनाना है, तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि लर्निंग लेना। नॉर्मली ऐसा है कि जब आदमी सोचना बंद कर देता है, जब लर्निंग की जब फैकल्टी जब स्विच ऑफ हो जाती है, तो आदमी का एजिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है। इस स्पीकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। बट अगर आप हर दिन सुबह उठो और आपके पास व्हाट इज दैट लुक फॉरवर्ड, क्या है वो, अगर वो नहीं अगर है, और उसके लिए अगर लर्निंग की एबिलिटी आप अगर डेवलप नहीं कर रहे हो, तो वी आर डाइंग एवरी डे। वी आर हियर टू डाई, बट वी हैव टू लिव एवरी डे। एंड इन ऑर्डर टू लिव एवरी डे, वी हैव टू कीप अवर सेल्फ यंग। अगर वो मतलब कार्तियायानी अम्मा अगर 100 के उम्र में सीख सकती है, जो लेडी आज कंप्यूटर भी सीख रही है, तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, वो सीख हम लोगों को कार्तियायानी अम्मा से लेनी चाहिए। बहुत सारे जैसे कैप्टन सैंडर्स है या फिर वॉल्ट डिस्ने है, जिन लोगों का करियर ही शुरू हुआ 50 के बाद। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। अमिताभ बच्चन खुद को इतना रिवाइज क्यों कर पा रहे? सोच के देखिए कि नए यंग स्टार्स 1 साल का 2 साल का करियर होता है। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक ऐसे स्टार है कि जिन्होंने इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बात की थी और अभी के एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उन्होंने वो बात कर दी। इतना बड़ा करियर उनका इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने खुद का नोकिया नहीं बनने दिया। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने खुद का कोडाक नहीं बनने दिया। कंटिन्यूअस रिवाइज करते रहे, कंटिन्यूअस लर्निंग की एबिलिटी ऑन रखी, इसलिए आज जो भी है सिर्फ लर्निंग एबिलिटी के कारण। सो वेलकम टू दिस सेशन कॉल्ड द पावर ऑफ लर्निंग एंड पावर ऑफ अनलर्निंग। मतलब आप जो भी है, तो आपको
लर्निंग करना है, बट पहले तो अनलर्न करना है। अनलर्निंग का मतलब होता है सबसे बड़ा और टफ टास्क ये है लाइफ में कि हम लोग जो भी सीखे उसको वॉश आउट कर देना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने बैजेस को लेके घूमते हैं, डेसिग्नेशन को लेके घूमते हैं, अपने पढ़ाई को लेके घूमते हैं। मैं तो मास्टर्स हूँ, मैं तो पीएचडी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और उस प्रोसेस में हमारे जमाने में तो ये होता था, हमारे जमाने में तो वो होता था, बस इसी कहानियों में उलझ के अपने फैकल्टी को स्विच ऑफ कर देते, और उस स्विच ऑफ होने का कारण वो पढ़ नहीं पाते, राइट। बट जितना भी चीजें हम लोग सीखे हैं उन सारी चीजों को हम लोगों को अनलर्न करना है। एक बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जिस एजुकेशन के बदौलत हम लोग आज इस कॉल पे बैठे हुए हैं, जिसको भी हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो जो औपचारिक जो एजुकेशन हम लोगों ने लिया है, वो एजुकेशन सिर्फ हम लोगों को ब्रेड एंड बटर दे सकता है। और उसने केवल और केवल ब्रेड एंड बटर ही दिया है, मतलब सिर्फ लिविंग दे सकता है। लाइक जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव, ये बदलाव इस बिजनेस से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आपको फॉर्चून अगर बनाना है, फॉर्मल एजुकेशन से सिर्फ लिविंग बन सकता है, बट आपको अगर फॉर्चून अगर तैयार करना है तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा। सो पावर ऑफ लर्निंग। ऑलराइट, नाउ ये स्लाइड देख लीजिए। इंफॉर्मेशन से हम लोग भरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन एज में फिलहाल रह रहे हैं। इसका मतलब है कि सारी इंफॉर्मेशन जिधर उधर अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है जिधर उधर, आप लोगों के अप्लायंस है, मतलब इंफॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं। बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे इसमें से कौन सा नॉलेज पिक करना है, और उस नॉलेज का मुझे इकट्ठा, मतलब कनेक्टिंग डॉट कैसे करने, वो नॉलेज इकट्ठा जोड़ना कैसे। और ये नॉलेज आप जब जोड़ दोगे तब कहा उसका कन्वर्जन आपके विजडम में होता है, जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं शहानपन, राइट। कि सुलझा हुआपन जो बोलते हैं हिंदी में, तो वो विजडम जो है, वो विजडम तब आता है कि आप इंफॉर्मेशन को कन्वर्जन नॉलेज में कैसे करते हो, और नॉलेज का कन्वर्जन आप विजडम में कैसे। सो कलेक्टिंग, कनेक्टिंग एंड क्रिएटिंग, दैट इज ट्रू लर्निंग। ऑलराइट, सो पावर ऑफ लर्निंग, व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, राइट। मतलब गुड क्वालिटी लर्निंग जो है वो एक आदमी की जिंदगी बदल सकता है, और एक आदमी की जिंदगी बदलने का मतलब है एक कम्युनिटी की जिंदगी बदल सकती है, और एक कम्युनिटी बदलने का मतलब है कि दुनिया बदलने में भी वो साबित हो सकता है। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं कि वन ऑफ द वेरी लर्नेड पर्सन कॉल्ड डॉक्टर अंबेडकर, एक आदमी, वो फॉर्मल एजुकेशन के बाद लर्निंग एबिलिटी कांस्टेंट ऑन रखी, पहले खुद पे काम किया, इसलिए कम्युनिटी पे काम कर पाए, इसलिए इंडिया में चेंज लाया, आज दुनिया के लिए वो मिसाल है। तो मैं जैसे बोल रहा हूं कि लर्निंग मतलब, आप ये पूरे सेशन में लर्निंग का मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इसको कंप्लीटली बाहर निकाल दीजिए। मैं पूरे इनफॉर्मल लर्निंग की आज बात कर रहा हूँ, राइट। जो आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिला है, और जो नहीं मिल सकता है, जो आपको पूरे माहौल से इकट्ठा करना है, उसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, राइट। सो इतना पावर लर्निंग में है। नंबर 1, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सोच के देखिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस, ओके, सो ट्रेडिशनल बिजनेस और फाइंडिंग अ ड्रीम जॉब इज नॉट इजी टुडे, राइट। मतलब ये बड़ा टर्मोइल भरा टाइम है। लॉकडाउन हुआ नहीं था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना ही शुरू हो गया था कि फिर से दूसरी कोविड की न्यूज आ गई और फिर से एम्प्लॉयमेंट ठप है, राइट। सो बट राइट लर्निंग के साथ, राइट ट्रेनिंग के साथ, और राइट क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के साथ, आप एक फुलफिलिंग इनकम, जो आपको डिजायर्ड इनकम है, उसको आप लैंड कर सकते हैं। इसलिए लर्न, ट्रेन, एडुकेट योरसेल्फ। जितने क्वालिफिकेशन अगेन, मैं क्वालिफिकेशन मतलब हर चीज का क्वालिफिकेशन क्या है। अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे चीजों का डिमांड होता है कि आपको एनएफटी सीखना है, क्रिप्टो माइनिंग सीखना है, फोरेक्स सीखना है, स्टॉक मार्केट कैसा काम करता है वो सीखना है, बिनांस कैसे काम करता है वो सीखना है। ये सारे मार्केट कैसे किन किन चीजों का अफेक्ट इन मार्केट पे होता है वो आपको सीखना है। इंटरपर्सनल स्किल्स आपको सीखने हैं, सॉफ्ट स्किल्स आपको सीखने हैं, कम्युनिकेशन का स्किल आपको एक्वायर करना है
कितनी सारी चीजें सीखने के लिए है, बट इतनी सारी चीजें अगर धीरे धीरे करके हर दिन थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए कि आज से अगर आपने प्लेस ले लिया कि मुझे सीखना है, तो 365 दिन का मतलब है कि आप जिंदगी के लिए 35% से बढ़ गए। 35% से आपके लाइफ में आपने इजाफा कर लिया, राइट। सो ये जो स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जितना इस फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, जितना आप समझ और सूझबूझ इसके लिए हासिल कर लोगे, उतना अपने लिए अच्छा है, सो दैट अपने लिए एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तैयार हो सकती है। ऑलराइट, securing a higher income, पीपल विथ हायर अवेयरनेस लेवल। अल्टीमेटली क्या होता है कि आदमी जो भी जिंदगी में बनता है, वो सिर्फ उसके दिस सक्सेस इज कंप्लीटली इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ द लेवल ऑफ अवेयरनेस। बहुत बार ऐसा होता है कि अवेयरनेस की लेवल ही हमारी कम होती है, हम लोग अवेयर ही नहीं होती कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को डिमांड कैसी है, राइट। अब ये आपकी अवेयरनेस की लेवल जब आप, और ये भी जैसे आपका जो वेल्थ रिपोर्ट, जैसे हेल्थ रिपोर्ट होता है, वैसा आपका एक वेल्थ रिपोर्ट भी है। हेल्थ रिपोर्ट मतलब आप जैसे चेक करते हैं कि आपको पता चलता है हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो इस तरह की जो डेफिशिएंसीज का पता हम लोगों को हेल्थ रिपोर्ट से पता चलता है, वैसा अपना पीरियोडिकल चेक करना भी बहुत जरूरी है कि मैं जहां पर हूं, मेरा इनकम सफिशिएंट है क्या, ये असल में मुझे कहीं पे पहुंचा सकता है क्या, अगर ये नहीं है तो मुझे और क्या करना चाहिए। ये भी आपका अवेयरनेस करे, मतलब यू आर अवेयर कि मेरा इनकम मुझे कहाँ पहुंचा सकता है, मेरे इनकम से अच्छी गाड़ी आ सकती है कि मेरे इनकम से मेरा बेटा फॉरेन में जा सकता है क्या, मेरे इनकम से एक डिसेंट लाइफ मैं पा सकता हूं क्या। ये अवेयरनेस का लेवल आपका जब आ जाएगा, तब का जाके आप डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, टाइम और एफर्ट डाल के नॉलेज एक्वायर करोगे, राइट। और उस हायर कॉम्पिटेंस लेवल, ये सारा एक्वायर करके आप एक हायर कॉम्पिटेंस लेवल पे पहुंचोगे, जो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। इसलिए सिक्योरिंग हायर इनकम के लिए भी आपको लर्निंग की एबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व, हम लोग है ना, बहुत बार अभी कितने टीम में से बहुत सारे प्रॉब्लम ही लोग जनरली लेके आते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट जिंदगी में लिए सीख लीजिए कि आदमी क्यों हायर होता है या आदमी को पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है। सत्या नडेला को इतना बड़ा जॉब क्यों दे दिया गया, क्योंकि उनमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, राइट। जेफ बेजोस कंपनी के ओनर क्यों है, क्योंकि उनमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कि मेरे एंड पे ही सारे प्रॉब्लम नहीं, जितने मैं सॉल्व कर सकूं उतने मैंने सॉल्व कर लेने चाहिए, ये स्किल भी आपको सिर्फ लर्निंग एबिलिटी से ही एक्वायर हो सकता है। द बेनिफिट ऑफ लर्निंग टीचर्स अस हाउ टू ऑब्टेन एंड डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, नॉर्मली लोगों के पास थिंकिंग भी नहीं होता है, राइट, बट ये लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपको आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए जो मदद करते हैं, उसके लिए लर्निंग की एबिलिटी आपको डेवलप करनी चाहिए। They should be able to make sound decisions on pay off your student loan। और ऐसे ही लोग एक साउंड डिसीजन जिंदगी में ले सकते हैं कि जिनके कारण वो अपना स्टूडेंट का लोन क्लियर ऑफ करते हैं, राइट। जैसे माय डॉटर ने, कि शी न्यू कि मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आज शी इज फंडिंग हर ओन एजुकेशन। मतलब क्या हो गया कि उसने एक साउंड डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है। बहुत सारे डेट्स होते हैं, राइट, और ये सारा क्लियर करके गुड इनकम लेवल, बाय द ड्रीम कार एंड हाउस एंड गो ग्लोब ट्रॉटिंग etc। ये सारी चीजें तब पॉसिबल हो सकती है कि जब हम लोग अपनी लर्निंग एबिलिटी डेवलप करेंगे। ऑलराइट, सो फोर्थ पॉइंट, इंप्रूविंग द इकोनॉमी। अल्टीमेटली इंडिया क्या है, समाज क्या होता है, गांव क्या होता है, शहर क्या होता है, हमारे जैसे एक छोटे छोटे, अपनी बॉडी क्या होती है, एक छोटे छोटे सेल से मिलकर अपनी बॉडी जैसे बनी है, वैसे ही हम लोग एक छोटे छोटे सेल है इस इंडिया के। और ऐसे अलग अलग सेल, जब एक कॉम्पिटेंट सेल जब तैयार हो जाएंगे, तब का जाके इंडिया भी कॉम्पिटेंट बनने वाला है। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि दुनिया का 5वें नंबर की हाईएस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी मतलब इंडिया है। इंडिया की तरफ एक नॉलेज पूल जैसे देखा जाता है, विश्व गुरु जैसा इंडिया की तरफ आजकल देखने लगे हैं। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के कारण। बट हम लोगों को थोड़ी देर के लिए ये भी सोचने की जरूरत है कि मैं असल में एज अ गुड सिटीजन मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है क्या। इसका मतलब है कि हम लोग जब
जब वेल्थ क्रिएशन जब करते हैं तो हम लोग का स्पेंडिंग पावर बढ़ता है। स्पेंडिंग पावर बढ़ता है मतलब क्या होता है कि हर कोई उससे बेनिफिट लेने लगता है। आप ज्यादा फल खरीदते हो तो फल वाले बेनिफिट लेने लगते हैं, सब्जियां ज्यादा खरीदते हो तो सब्जी वाले बेनिफिट लेने लगते हैं, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बेनिफिट लेने लगते हैं, उसके कारण टीचर का पेमेंट होता है। तो ये सारी इकोनॉमी जब रोल होने लगती है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए आपके और मेरे जैसे लोगों की ही जरूरत होती है। बट उसके लिए पहले अपनी लर्निंग की एबिलिटी हम लोगों को बढ़ानी होती है। पीपल विद गुड स्किल एंड ट्रेनिंग बैकग्राउंड्स टेंड टू गेट गुड अर्नर्स। कौन अच्छे, मतलब नीलेश सर एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, प्रीति मैडम है, या बहुत सारे लोग हैं, सूरज सर है, इधर हिंगे सर है, विराज सर है। ये सारे लोग उस लेवल पे पहुंचने का कारण क्या है, वो गुड अर्नर बनने का कारण क्या, क्योंकि उन्होंने वो स्किल एक्वायर किया। The higher their learning and accomplishment, the better earning options they get. Also have high chances to transform their lives. अगर ये सब कुछ करके चांसेस है कि वो अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करे। 10 contributing to a decrease in society's poverty rates, मतलब सोसाइटी का जो पॉवर्टी रेट है उसको डिक्रीज करने का काम भी अपना लर्निंग पावर करता है। लर्निंग हेल्प्स कंट्रीज ग्रो इकोनॉमिकली since it is about getting knowledge and being able to apply it wisely to our lives and at the same time improving other people's lives. हम लोग आज क्यों देख रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान जैसा कंट्री की जहां पर उन्होंने अपना लर्निंग एबिलिटी बंद कर दिया, राइट। वेराज अपने जो कुछ कुछ लोग हैं जैसे जयशंकर है, अपने आरबीआई के गवर्नर ले लीजिए, या फिर शशि थरूर टाइप के लोग ले लीजिए, ये सारे इस तरह के जो क्वालिटी लोग हैं, ये लोग हमें आजू बाजू में नहीं दिखते, राइट। बट उस तरह का लेवल हमको अपनी लर्निंग एबिलिटी से लाने की जरूरत है, राइट। फिफ्थ, प्रोवाइडिंग अ प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ। लर्निंग हैज ऑलवेज सिक्योर्ड रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी में रिस्पेक्ट हम लोगों को कब मिलता है कि जब हम लोग एक लर्नेड टाइप होते हैं, राइट। In order to ensure a comfortable lifestyle, people should educate themselves and obtain a healthy wealth to be successful and satisfied. It helps gain a better reputation and increase the chances of climbing socio-economic ladder more easily and faster. Right? इसका मतलब होता है कि providing a prosperous and happy life के लिए भी learning को constant आपका way of life बनाना बहुत जरूरी है, right? So providing stability and increased self-confidence, it leads to creating a positive environment for families and communities. नीचे एक छोटा सा एक सर्वे डाला हुआ है कि जिनके पास खुद के घर है उनके बच्चे 116% से उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अच्छे कॉलेजेस से पास आउट हो, रादर देन जिनके पास खुद के घर नहीं हो। अब ये खुद के घर होने का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स यू नीड टू डेवलप दैट लर्निंग एबिलिटी। हम लोग देखते हैं कि हमारे बिजनेस में ही एक शख्स है कि जिन्होंने सिर्फ लर्निंग की एबिलिटी ऑन रखी और इस बिजनेस के जरिए केवल 1.5 साल में खुद का 2 मंजिला बिल्डिंग उन्होंने तैयार की है, राइट। क्यों ये पॉसिबल हो पाया? अब उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ही जस्ट 10+2, बट पॉसिबिलिटी इसलिए तैयार हो पाई बिकॉज ही वाज ओपन टू लर्न। ऑलराइट, सो प्रोवाइडिंग अ प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ, यस ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न। ऑलराइट, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, मतलब हमारे जैसे बिजनेसेस में और एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि हियर वी ओनली डोंट ग्रो, उल्टा हम लोग तभी बढ़ते हैं जब हम लोग सोसाइटी में हेल्प करते हैं। सो हाउ डज लर्निंग बेनिफिट सोसाइटी? Learned people understand how valuable it is to live in a stable and secure community. और इस तरह के स्टेबल और सिक्योर कम्युनिटी में रहने का मतलब क्या है, एक लर्नेड आदमी जानता है और वो खुद को पहले एडुकेट करता है, और वो एडुकेट होता है तो फैमिली एडुकेट होती है, फैमिली एडुकेट होती है तो कम्युनिटी एडुकेट होती है। अल्टीमेटली एक सेफ स्टेबल कम्युनिटी हम लोग अपने इर्द गिर्द तैयार कर लेते हैं। दे आर मोर प्रोन टू टेकिंग पार्ट इन प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं कि जिसके कारण अपना नेबरहुड सुधरने लगता है, नेबरहुड में इंप्रूवमेंट आता है। आफ्टर ऑल इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड गिव अ हैंड टू द लेस फॉर्चुनेट वंस इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव इन। सिर्फ हमारे बनने से नहीं होता है, सोसाइटी बननी चाहिए, और जब सोसाइटी जब बनती है तब हम ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। इसलिए यू आर ऑलवेज पेड
आपका इनकम उसी प्रोपोर्शन में होता है कि आपने कितने लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया है. दैट मीन्स we have to be like really a great contributor. Alright. 7th point, creating modern society. हम लोगों को अपनी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी करनी है, राइट? जैसे दुबई ले लो या जितने भी मॉडर्न कंट्रीज, यूरोप के कुछ कंट्रीज ले लो, उनका एक लिविंग का स्टैंडर्ड ले लीजिए, उनका एक मतलब ओवरऑल जो उनकी जो एक लाइफस्टाइल है या जो सिटी का एक जो एक एनवायरनमेंट होते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्रिएटिंग मॉडर्न सोसाइटी. लर्निंग इज अ की सेंस फॉर मॉडर्न सोसाइटी. मतलब की सेंस क्या है मॉडर्न सोसाइटी का? लर्निंग. One need to learn and understand other important aspects so that they would be able to contribute to modern society. Education mold people into leaders, and competent leaders can help guide us down a good and right path. Educated people can easily differentiate between right and wrong, making world better place to live. Right? मतलब educated या जितने भी learned लोग होते हैं उनमें वो एक ability होती है कि right and wrong में से फर्क उनको समझ में आता है. ब्रिजिंग द बॉर्डर्स एंड क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज. सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि हम लोगों के बिजनेसेस, हम लोग कितने सारे लोगों के साथ काम करें. मेरे टीम में तो कुछ पाकिस्तानी भी अभी, राइट? मतलब ये एक भाईचारे का संदेश कब जाता है? जब लर्निंग एबिलिटी ऑन होती है, राइट? सो और हमारे टाइप के जो बिजनेसेस है, इस बिजनेस में तो बॉर्डर कुछ है ही नहीं. मतलब ये प्रोफेशन तो सारे कास्ट, क्रीड, देन रिलीजन के ऊपर है, मतलब जो कलर के ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर है, राइट? मतलब इसके जैसा नोबल प्रोफेशन का हिस्सा होने का भी मतलब क्या है आप समझ सकते हैं. यहाँ पर किसी को भी हम लोग रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कलर के आधार पर, उसके सोशल स्टेटस के आधार पर कभी भी पुश नहीं मिलता है. जिसने अपनी लर्निंग एबिलिटी डेवलप कर ली वो आगे जाता है, राइट? सो ये सारे बॉर्डर्स को ब्रिज करने का भी काम लर्निंग करता है. इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए तैयार करने का काम भी लर्निंग करता है, राइट? इंट्रोड्यूसिंग एम्पावरमेंट, राइट? मतलब लर्निंग इज द की टू टर्न अ वीकनेस इनटू अ स्ट्रेंथ. इट प्रोवाइड्स अस विद कंसिडरेबल मेंटल एजिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन एंड स्प्रिंग इनटू एक्शन व्हेन नीडेड, राइट? Education is the most powerful weapon which can use to change the world. अल्टीमेटली सोच के देखिए जितने भी कंट्रीज में अपना एजुकेशन है, केरला का एजुकेशन का रेट अच्छा है, लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, इसलिए केरला में बहुत सारी चीजों का बैलेंस हम लोगों को दिखता है. बट ऐसे कुछ स्टेट है कि जहां पर लर्निंग एबिलिटी कम है, एजुकेशन कम है, तो डिस्पैरिटी हमें दिखती है. इसका मतलब यह है कि लर्निंग इज एम्पावरमेंट, राइट? तो हम लोगों को जैसे अलग अलग जो स्किल्स एक्वायर करने हैं, अब वो स्किल एक्वायर करने का एक हिस्सा ये भी है कि हम लोगों को ट्रेडिंग भी सीखना है. थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि ट्रेडिंग जैसे जो कुछ सर्टेन कम्युनिटी के पास, कुछ सर्टेन लोगों के पास ही अभी तक के ट्रेडिंग का स्किल हुआ करता था और वो ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ करती थी. बट आज इस नॉलेज इकोनॉमी के कारण हम लोगों जैसे आम आदमियों के पास भी इंडियन स्टॉक मार्केट पहुंचा है, फॉरेक्स मार्केट पहुंचा है, क्रिप्टो मार्केट पहुंचा है. यूट्यूब के कारण लो या किताबों के कारण लो या इन सारे अपने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के कारण हमारे पास पहुंचने वाला नॉलेज अनफिल्टर्ड पहुंचता है. अभी ये हमारी एक एबिलिटी हमें डेवलप करनी है कि यही से नॉलेज लेके हमें एक अच्छा ट्रेडर भी बनना है. वो भी एक स्किल आपको एक्वायर करना ही चाहिए. तो ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग लर्न टू ट्रेड, ट्रेडिंग इज प्रोबेबली, ट्रेडिंग के बारे में एक कहावत है कि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है कि जो स्किल हो सकता है कि गॉड फॉरबिड, बट कोई अगर आदमी डेथ बेड पे भी अगर है तब भी वो पैसा कमा सकता है उसके पास अगर ट्रेडिंग का स्किल है. तो पैंडेमिक में भी लोग पैसा कमा रहे थे क्योंकि पैंडेमिक में भी जिन लोगों को ट्रेडिंग आता था वो लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर थे, बट बाकी लोगों को सीखना पड़ा था. अगर लॉकडाउन जैसी कोई भी परिस्थिति अगर आती है तब भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये एबिलिटी हमें डेवलप करनी है. That ability is called trading. So making trading a lifetime of skill to secure a great future. तो आपको आपका एक ग्रेट फ्यूचर
सोच के देखिए, क्रिप्टो की भी अगर हम लोग बात करें, बिटकॉइन जिसकी कीमत 4-5 दिन पहले 12-13 लाख पे थी, आज उसकी 16-17-18 लाख पे पहुंच चुकी है 3-4 दिन के। बट अब इस महासागर से हमें क्या पिक करना है ये हमें नहीं पता है, पर जिनको पता है उन्होंने उसमें पैसे बना लिए। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी है, प्रोवाइडेड हम लोग इन चीजों का लर्निंग ले लें। आने वाले कुछ महीनों में हम लोग खुद को ऐसा तैयार कर दे कि खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर पाए। ऑलराइट, सो बिकम ग्रेजुएट ऑफ फिनटेक एंड एडुटेक इंडस्ट्री। आपको शायद है ना डिग्री नहीं मिलने वाली है, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उस तरह की डिग्री नहीं मिलने वाली है, लेकिन यू शुड बी ग्रेजुएट ऑफ फिनटेक। फिनटेक के बारे में सोच के देखिए कि हम लोगों को ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के कुछ ही चीजें सिर्फ पता है, एफडी पता है, इंश्योरेंस पता है, म्यूचुअल फंड पता है, राइट, इंडियन स्टॉक मार्केट का कुछ छोटा मोटा हिस्सा पता है, पैसा डाल दिया और मैं भूल गया टाइप, रियल एस्टेट पता है। बट टेक्नोलॉजी के कारण इवन फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी बदल चुकी है, जिसको नए मॉडर्न टर्म में जिसको फिनटेक इंडस्ट्री होते हैं, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर। और वैसे ही एजुकेशन भी जैसा पुराना क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता था, जो टिपिकल बीए बीकॉम बीएससी हुआ करता था, उसके साथ भी टेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है। मतलब फिनटेक इंडस्ट्री और एडुटेक इंडस्ट्री, इसका कॉम्बिनेशन मतलब हम लोगों का प्लेटफॉर्म है। ऑलराइट, सो आज जरा देखिए कि हम लोगों के क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर और कौन है, तो बायजूस एक लर्निंग ऐप है जो आपको सिखाता है। ये बहुत सारे अलग अलग एप्स है जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला है। सोच के देखिए, पहले एक टीचर एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाता था, आज एक टीचर 5 लाख स्टूडेंट को पढ़ाता है। दैट्स द पावर ऑफ लर्निंग टुडे। मतलब एक नॉलेज 5 लाख लोगों के साथ इक्वल पहुंच रहा है। तो इस तरह का ये जो एडुटेक इंडस्ट्री है, इस तरह का जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम लोगों का भी लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है। तो हम लोग भी बायजूस, टॉपर, खबरी, ये एक सर्टेन सेगमेंट में काम करने वाले लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। हमारा भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है कि जो आपको फिनटेक इंडस्ट्री का एजुकेशन देता है, आपको फिनटेक इंडस्ट्री का ग्रेजुएट कराता है, राइट। लर्निंग एप्स टुडे इवन स्पॉन्सर आईपीएल काइंड ऑफ प्रोग्राम, राइट। इसलिए प्रमोटिंग आईएस ग्लोबल एज अ फिनटेक लर्निंग ऐप कैन ब्रिंग फॉर्च्यून। सो इसलिए फॉल इन लव विद लर्निंग। Pandemic has forced to suspend physical classrooms and shift to online education. मतलब इंडिया आने वाले 500 मिलियन न्यू यूजर्स क्या बोलते इंटरनेट पे ऐड करने जा रहा है। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम लोगों को एक डिजिटल बिजनेस बिल्ड करने का अवसर है, प्रोवाइडेड हम लोग पहले इस डिजिटल एजुकेशन का हिस्सा हो जाए। ऑलराइट, इतनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। आईटेड एकेडमी मतलब 300 घंटे के ऊपर का प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अलग अलग भाषाओं में ये सारा प्रोग्राम अवेलेबल है। दूसरा, ये मास्टर ट्रेड यूनिवर्सिटी जो आपको पता है एकदम फ्रेशमैन लेवल से लेके तो आपको प्रोफेशनल लेवल तक के बनाने वाला, ये सारा का सारा प्रोग्राम आईएस ग्लोबल के साथ अवेलेबल है। माइंडशिफ्ट के लिए पर्सनल डेवलपमेंट की वीडियो की गैलरीज है, एक्सक्लूसिव लीडरशिप सेमिनार्स है, ये अभी का जो ट्रेनिंग है ये भी उसी का हिस्सा है। तो इस तरह का ये माइंड शिफ्ट करने वाले प्रोग्राम अपने पास है। प्लस ऐसा कब हमें वक्त मिला, सोच के देखिए कि आपके एमडी के साथ भी कॉफी पीने का हम लोगों को कभी अवसर नहीं मिला है। अपने जिन कंपनियों के साथ हम लोग काम करते हैं उन कंपनियों के ओनर के साथ कभी कॉफी पीने के अवसर भी हम लोगों को शायद नहीं मिले हैं। बट यहाँ पर जो प्रूवन टेस्टेड लीडरशिप, जो प्रूवन टेस्टेड लर्नर्स है, उस तरह के लर्नर के साथ वक्त बिताने का चांस भी आपको अवेकन के साथ मिलता है। इस 24 तारीख को मैं भी बाली जा रहा हूँ, वो भी इस तरह के एक लीडरशिप रिट्रीट के लिए। इसका मतलब है कि मैं 5-6 दिन सिर्फ लर्निंग ही करके आने वाला हूँ कि ये जो टाइकून्स है कि जो सर है या विराज सर है, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनके कपड़े कैसे होते हैं, ये बात कैसे करते हैं, इनका एकदम अंदाज कैसे होता है, किस तरह का लर्निंग इन्होंने एक्वायर किया। तो इस तरह की सारी चीजें मुझे लाइव अटेंड करने का मौका भी ये बिजनेस देता है। मतलब आप सोच के देखिए कि लर्निंग की कितनी सारे एबिलिटी डेवलप करने के चांसेस इस बिजनेस के साथ है, राइट। इसलिए पहले लर्न कीजिए, राइट। लर्न होगा तभी अर्न आएगा।
बट आप अगर सोचोगे कि मुझे सिर्फ अर्न करना है, लर्न नहीं करना है, अर्निंग इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो इनोवेट, इंस्पायर, इम्पैक्ट योर लाइफ। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। हम लोग विराज सर के एक छोटे से वीडियो के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, कि जिन्होंने बोला है कि फॉर्मल एजुकेशन ये सिर्फ आपको लिविंग दे सकता है, राइट, बट सेल्फ एजुकेशन मेक यू अ फॉर्च्यून। वो एक इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर होने के बाद भी उनको उनके उस लर्निंग एबिलिटी के कारण आज वो दुनिया के नंबर 1 के अर्नर है। बट व्हाई? उन्होंने अर्न के पहले एल लगा दी। सो फॉल इन लव विथ एल, लर्न कर लोगे, अर्निंग बिल्कुल ही पॉसिबल है। विराज सर का हम लोग ये वीडियो देखते हैं कि विराज सर क्या बोलते हैं। So I was going through a lot of quotes. So a quote which inspired me, which is by Elon Musk: schooling and education shouldn't be confused. I didn't go to Harvard, but people that work for me did. So society these days puts a lot of emphasis on schooling or education. It is certainly important, but it is not everything. Schooling or good grades does not equate to education. Education is in the world which is around us, in the outside world. So a lot of business schools or colleges and universities, the people who are the head of departments or the professors, are they in the 1% quadrant of the world? Are they making a fortune? They certainly are not fighting for survival, but they are not in the 1% quadrant. So people who even run the business school, they have actually never run a business. So real fortune is in providing solutions to real-time problems, and for that you need real education. Formal education can definitely add certain set of baseline, but it is again not everything. Formal education makes you a living and self-education makes you a fortune. This is yet another saying by Jim Rohn which validates this. So what is your favorite saying or the quote which inspired you to mention? All right. So formal education makes you living, but self education makes you fortune. जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने जिंदगी में लाया है, खुद के भी और लोगों के भी, वो आपको पीएचडी नहीं लिखेंगे, वो आपको हाईली एजुकेटेड नहीं लिखेंगे, लेकिन सुलझे हुए बहुत लिखेंगे। सुलझा हुआपन का मतलब है लर्निंग एबिलिटी उन्होंने ऑन रखी, लर्निंग अपना स्विच ऑन रखा, राइट, और उसी के कारण आज वो इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए हैं। सो आपके लिए भी आज के मकर संक्रांति के दिन एक प्लेज ले लीजिए कि मैं इस साल कितनी किताबें पढ़ने वाला हूँ, मैं अपने बिजनेस के कितने सारे अलग अलग, जैसे गोप्रो बुक है या रिच डैड पुअर डैड है या जो भी है रिकमेंडेड बुक्स का लिस्ट, अगर इफ यू आस्क मी, प्रोबेबली आई आल्सो कैन प्रोवाइड यू, राइट। देन 10x रूल है या फिर एटॉमिक हैबिट्स है। तो इस तरह के कितने किताबें आप इस साल पढ़ने वाले हो, कितने कौन से नॉलेज के लिए आप काम करने वाले हो, आप ट्रेडिंग का कैसा स्किल इस साल एक्वायर करने वाले हो, राइट। देन आपका एक बिहेवियरल चेंजेस आप कितने लाने वाले हो, आपका अपीयरेंस के चेंजेस आप कितने लाने वाले हो। तो ये सारा लर्निंग आप जब ले लोगे, आप सोच के देखिए 2024 के लिए आप एक नया पैकेज होंगे, राइट, और उस पैकेज बनने के लिए आप काम करिए। आप सभी को पूरा साल की शुभकामनाएं, एंड आई वांट टू सी यू ऑन द टॉप। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। बट यस, टेक प्लेज टुडे दैट यस, कितनी किताबें आप पढ़ने वाले हो, क्या लर्निंग एबिलिटी आप डेवलप करने वाले हो। ऑलराइट, सो